God spoke to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, get out from your father's house अपने पिता के घर से बाहर निकल and go to your land where I am going to show to you. और उस भूमि पर जा, उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Then Abraham obeyed that. और जब अब्राहम ने उस बात को माना, उसकी आज्ञा को माना, God gave him promises. परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया। God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will make you a great nation. मैं तुमसे एक बहुत बड़ा राज्य बनाऊंगा। I will make your name great. मैं तुम्हारे नाम को बड़ा करूंगा। Through you all the families of the earth will be blessed. और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सारे घर आशीषित होंगे। See, Abraham received all the blessings. अब्राहम ने सारी आशीषों को ग्रहण किया। Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है, we are called to inherit the blessings. परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुलाए गए हैं कि हम उस आशीषों के वारिस बने। Look at your neighbor and say, I am called to inherit the blessings. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें कि मैं बुलाया गया हूं ताकि अब्राहम की आशीषों का वारिस बन सकूं। See, we have a meeting tonight and tomorrow night. After tomorrow night, your mindset is going to be changed. आज की रात और कल रात के बाद आपकी आपका जो सोच है वो बदलेगा। You don't think I accidentally came here. I believe that I have been sent by the Lord. मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं आया, ये मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं परमेश्वर की ओर से यहाँ पर भेजा गया। Hallelujah. Hallelujah. Not only that, God spoke to me when I was praying in the hotel to come back to Mumbai again in January. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की इस बारे में। परमेश्वर ने कहा कि मैं मुंबई में फिर एक बार जनवरी में आऊंगा। Not in this place, in a different place. यहाँ पर नहीं, कहीं और आऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. See, a blessing is something good that brings happiness, protection, or benefit to a person's life. एक आशीष एक ऐसी चीज है जो एक मनुष्य के जीवन में एक सुरक्षा को, एक आनंद को और एक आशीष को लेके आता है। Hallelujah. Hallelujah. If you didn't understand what she said, once again, a blessing is something good. एक आशीष एक अच्छी ऐसी बात है that brings happiness, protection, or benefit to a person's life. वो एक ऐसी चीज है जो एक मनुष्य के जीवन में एक आनंद को, एक सुरक्षा को और एक बहुत अच्छी बात को लेके आता है। When we study the Bible, we can see that there are different types of blessings are mentioned in the Bible. अगर हम पवित्र शास्त्र को बहुत ही ध्यान से पढ़ें तो 3 प्रकार के आशीष है उसमें। So I put like this: spiritual blessings. एक पहला आत्मिक आशीष है। You know what is the greatest blessing? Salvation is the greatest blessing. आप जानते हो सबसे बड़ी आशीष क्या है? उद्धार, ये एक बहुत बड़ी आशीष है। Peace, joy, and eternal life. शांति, आनंद और अनंत जीवन। Not only that, there are different categories of blessings called physical blessings. और कई प्रकार की आशीष है, जैसे कि शारीरिक आशीष है, A good health, एक अच्छा स्वास्थ्य, strength, and protection. ताकत और सुरक्षा। The third category I put like this: material blessings. और वो सारी प्रकार को छोड़कर ये सारी मटेरियल ब्लेसिंग्स को Provision, prosperity, and abundance. प्रबंध, भरपूरी और भरपूरी। Say spiritual blessings, physical blessings, and material blessings. शारीरिक आशीष, आत्मिक आशीष और वस्तु की आशीष। How many of you enjoy these 3 blessings? आप में से कितने लोग ये 3 प्रकार की आशीषों का आनंद लेते हैं? That's a hard question. ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। See, that's the thing we are going to talk tonight. और यही एक बात है जो परमेश्वर आज आपसे कहने वाला है। You may accepted Christ long time ago. आपने मसीह का स्वीकार बहुत पहले ही किया होगा। But certain blessings you cannot achieve until now. और पर कुछ ऐसी आशीष है जिसे आपने अभी तक नहीं पाया है। One of the man of God said, in the Bible we have more than 6,000 promises. एक परमेश्वर के जन ने कहा कि पवित्र शास्त्र में 6000 से भी ज्यादा वाचाएं हैं, वादे हैं। So how many blessings we know? हम उनमें से कितने आशीषों को जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। I know God is going to speak to you. Shall we close your eyes for 1 minute? मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अभी आपसे बातें करेगा कि हम 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। If you have tongues, pray in tongues for few seconds. अगर आपको अन्य भाषा आती है तो अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे कुछ समय के लिए।
Raise your voice. अपनी आवाज को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। Raise your voice. Raise your voice. Why certain blessings are not able to receive in your life? क्यों कुछ आशीषें आप अभी तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाए हो? Few years ago, one of the brother, he called me from UAE. बहुत सालों पहले एक भाई ने मुझे यूएई इस देश से फोन किया, कॉल किया। He was sharing his story. वो अपनी कहानी को मेरे साथ बांट रहे थे। He went to the Middle East long time ago. वो एक जगह पर गए बहुत समय पहले। He was working and his wife was working as a nurse. वो और उसकी जो बीवी है वो एक नर्स के जैसे कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे। Every month they will get a salary. हर महीने उन्हें उनकी तनख्वाह मिलती थी। But after 15 days, the money will disappear very quickly. जब कभी इनको हर महीने अपनी तनख्वाह मिलती थी, हर तनख्वाह के 15 दिन बाद वो नहीं जानते थे कि मेरा पैसा, मेरी तनख्वाह कहाँ गई। When they reach to the last week, they have to borrow money from other people to feed their children. महीने के आखिरी हफ्ते में उन्हें लोगों से कर्जा लेना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों को खिला सकें। It was keep on going for over 10 years. ये चीजें हो ही रही थी हर महीने 10 सालों तक। They tried to save the money, but the money is not staying. वो बहुत कोशिश करते हैं कि पैसों को बचा के रखे, पैसों को रोक के रखे, लेकिन पैसा उनके पास नहीं रुकता। I prayed for them. मैंने उनके लिए प्रार्थना की। I prayed that curse, whatever it was operational in their life, is that is being gone at that time. और मैंने जो प्रार्थना की, जो भी श्राप उनके जीवन में उस समय कार्य कर रहा था, वो उसी समय जा चुका था। See, they were earning a lot of money. वो बहुत सारे पैसों को कमा रहे थे। They both had a good job. उन दोनों के पास बहुत ही अच्छा काम था। But they couldn't save a single penny. लेकिन फिर भी वो 1 रुपया भी बचा नहीं पा रहे थे। That means उसका अर्थ ये है कि there was a invisible hand was operational in their life. इसका अर्थ ये है कि एक न दिखने वाला, एक दिखाई न देने वाला हाथ उनके जीवन में कार्य कर रहा है। Tonight we are going to think little about this invisible hand. आज रात को हम इस पर और सीखेंगे कि जो चीजें दिखाई नहीं देती उस चीज के ऊपर। How come some certain people always living defeat, poverty and struggles? कैसे कुछ लोग हमेशा अपने जीवन में गरीबी और मेहनत और बहुत ज्यादा स्ट्रगल से जूझते हैं। We say we are called to inherit the blessings. हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम बुलाए गए ताकि हम अब्राहम के आशीषों के वारिस ठहरे। But why certain people always facing defeat and stagnation in their life? पर फिर भी क्यों कुछ लोग अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं, हार जाते हैं? I tell you the answer. मैं आपको इस चीज का उत्तर देना चाहता हूँ। It could be a curse is operational in your life. वो एक श्राप हो सकता है जो आपके जीवन में कार्य करता है। What is the definition of a curse? श्राप इस शब्द का अर्थ क्या है? A curse is a spoken evil word or a bad word against you, against a thing, against a place. श्राप एक ऐसी चीज है, एक बुरा शब्द, एक बुरी बात जो आपके विरोध में बोली गई हो। It could be against your health, वो आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध बोली गई होगी, against your finances, आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर बोली गई होगी, against your children, आपके बच्चों के विरोध में बोली गई होगी, even against your church, आपके कलीसिया के विरोध में बोली गई against होगी, your car, आपके जॉब, आपके काम के ऊपर बोली गई होगी, against your health. आपके स्वास्थ्य के ऊपर बोली गई होगी। A curse means it's a spoken or a written word against your destination. एक श्राप इसका अर्थ ये है कि बोला हुआ या लिखा हुआ ऐसा शब्द जो आपके भविष्य में कार्य करता है। Book of Galatians chapter 3:13 and 14 says that Jesus became a curse at the cross. He took all the curses upon the cross. Then how come a certain people always going that
repeated defeat in their life. गलीतियों उसका 3:13 और 14 में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमारा सारा श्राप उसने लिया। तो फिर भी क्यों कुछ लोग आज हारा हुआ जिंदगी जी रहे श्राप में? You may be attended many people, many men of God laid the hands upon you, but still you can't come out. That means there is a crisis operational in your life. आप कई सारी सभाओं में गए होंगे, कई सारे परमेश्वर के बड़े जनों ने आपके ऊपर हाथ रखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बदल नहीं रही। इसका अर्थ ये है कि वो श्राप आपके जीवन में कार्य कर रहा है। Tonight I am going to break every generational curses in the mighty name of आज Jesus. रात को मैं हर एक पीढ़ी से पीढ़ी आया वो श्राप को तोड़ने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Few weeks ago I was in Singapore. कुछ हफ्ते पहले मैं सिंगापुर में था। A Chinese man came to me. एक चाइनीज आदमी मेरे पास आया He looks like around 65 years old, looks like my father's age. और वो बिल्कुल मेरे पिता के जैसा दिख रहा था, एकदम मेरे पिता की उम्र के बराबर। He shared his story. उसने अपनी कहानी को मेरे साथ बांटा। 10 years he never had a job. 10 सालों तक उसके पास कोई काम नहीं था। No money is coming to his hands. कोई पैसा उसके हाथों में नहीं आ रहा था। His wife is working. उसकी बीवी काम करती थी His wife is feeding him. और उसकी बीवी उसको खिला रही थी। He was so worried. वो बहुत ही परेशान था। He was so depressed. वो बहुत ज्यादा ही तनाव में था। Then he asked me a question. उसने मुझसे एक सवाल पूछा। Pastor, I received many prophecies. Why I am struggling and suffering like this? उसने मुझसे कहा कि पासवान, मैंने बहुत सारे भविष्यवाणी को मेरे जीवन में बोलते हुए देखा, लेकिन फिर भी मैं क्यों आज भी संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे पास आशीष नहीं है। Then I told him the truth. तब मैंने उससे सत्य कहा, मैंने After सच that I बोला prayed for him. और मैंने उसके लिए प्रार्थना की। Hallelujah. हालेलुया। Tonight we are going to remove that invisible barrier from your life. आज रात को आपके जीवन में से वो नहीं दिखने वाली उस बाधाओं को हम तोड़ने वाले यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is impossible with our Lord. कोई भी चीज हमारे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। If God is with us, who is against you? जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन होगा? Hallelujah. हालेलुया। Jesus nailed any principalities, every powers of darkness, and he nailed at the cross. He gave the victory over you. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सारे सिद्धांतों के ऊपर अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाया, आपके लिए अपने जीवन को उसने दिया। You should know who you are in Christ. आपको पता होना चाहिए कि आप मसीह में कौन हो। Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, you are called to inherit a blessing. आप बुलाए गए हो ताकि वारिस बन सको आशीषों के। See, quickly I'm going to some areas. What's the definition? We already heard about what's the definition of curse. A curse is opposite of blessing. मैंने आपको जैसे बताया कि श्राप का अर्थ क्या है। श्राप यानी कि आशीष का विरोध। How do you know that a curse is still active in your life? Few points I'm going to read it quickly. आप कैसे जानोगे कि श्राप अभी भी आपके जीवन में कार्य कर रहा है? मैं कुछ पॉइंट्स को आपके साथ पढ़ूंगा। Patterns of repeated defeat, constant failure in your career, in your relationship and finances. हार जाना, बार बार उस चीज के ऊपर, आपके संबंध में, आपके काम पर, आपके हर एक चीजों में हारा हुआ जीवन महसूस करना। Patterns of repeated defeat. That means it's not for 6 months, over a long years. बार बार वही चीज, बार बार उसी चीजों में हारना, 6 महीने या 5 महीने के लिए नहीं, हर बहुत सालों तक उसी चीज के ऊपर हार जाना। Chronic sickness and barrenness. वो लगातार वो बीमारी और बैरनेस। Some people will say, see, I have this month this sickness, next month different sickness, the constant sickness. कुछ लोग कहते हैं कि इस महीने मुझे ये बीमारी थी, अगले महीने मुझे कोई और बीमारी थी। ये लगातार बीमारियों का रहना। Miscarriages in the families. आपके गर्भपात, आपके परिवार में किसी का गर्भपात होना। A constant financial struggles, business losses, financial losses.
एक लगातार आपके जॉब पर, आपके काम पर, आपके आर्थिक परिस्थिति में, आपके व्यवसाय में हारना और लॉस को यानी कि नुकसान को महसूस करना। Continuous incidents and accidents in their life. आपके जीवन में लगातार बुरी चीजें होना, आपका एक्सीडेंट होना, Breakdown of relationship. जो पारिवारिक संबंध है, किसी के साथ संबंध है तो फिर वो टूट जाना, Divorce in the family history. परिवार में तनाव का होना, Children turning against parents, parents are turning against children. बच्चों का माता पिता का विरोध करना और माता पिता का बच्चों का विरोध You करना। don't know why all the time husband and wife fighting. आप भी नहीं जानते कि क्यों बार-बार पति और पत्नी झगड़ा करते हैं। Constant strife in the family. बहुत तनाव, लगातार तनाव एक परिवार में। Broken families. टूटे हुआ परिवार, Broken brother and sisters relationship. एक भाई और बहन के टूटा हुआ संबंध, Mental or emotional torment. एक आत्मिक एक दिमाग वाला जो इमोशनल है वो टूटना, Which includes depression, तनाव, fear, डर, anxiety, anxious mind. एक तनाव, एक डर और एक बहुत ही घबराया हुआ मन, Mental illness. एक दिमाग में एक तनाव, एक दिमाग में परेशानी, Instability. स्टेबल नहीं रहना, अस्थिरता, Also spiritual, it could be spiritual blockages. वो भी एक आत्मिक रुकावट भी हो सकती है। Difficulty in praying, prayer. अगर आप लगातार प्रार्थना करते हो, Difficulty in reading the word of God. प्रार्थना करने में तकलीफ होना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में एक तकलीफ होना, Few more things. Family and generational patterns. परिवार और पीढ़ी से पीढ़ी आया हुआ वो चीजें, Problems repeating across generation. I mean, one generation after another वो generation. समस्या जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक लगातार आती है, Such as suicide, हो सकता है आत्महत्या, addiction. एक लगाव, एडिक्शन। One son is addicted with alcohol, the next generation, the same son, someone is addicted with alcohol. एक पीढ़ी में एक अगर बेटा शराब का लत उसको लगा है, अगली पीढ़ी में उसी बेटे को, दूसरे बेटे को शराब का लत अगर लगता है। Premature death. समय के पहले मरना, Death before the time. समय के पहले मरना, Suddenly a person is dying without a reason. अचानक से एक व्यक्ति का मर जाना बिना किसी रीजन के, बिना These are the few examples of occurs what is operational in a person's life. ये कुछ उदाहरण है उन श्रापों के जो एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। Here I am going to say a few more things. Reasons for curses. This is very important. और कुछ बातों को हम देखेंगे। श्राप, You can write it down if you have a book अगर आपके पास कोई किताब है प्लीज आप उसे लिख के ले लें or take the notes. और नोट्स बनाएं। Curses can follow a person and it is a spiritual door for the negative possibilities. श्राप एक व्यक्ति का पीछा करता है और वो एक नकारात्मक द्वार है एक व्यक्ति के जीवन में। Curses can follow a person. Can follow a person. Follow means एक श्राप एक व्यक्ति का पीछा करता है, can follow wherever that person goes. जहाँ कहीं वो व्यक्ति जाता है वो श्राप उसका पीछा करता है। Some people, whatever they try to do, achieve in their life, when they reach into the maximum potential, an invisible hand will come and they will pull it down. एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार संघर्ष करता है ताकि वो ऊंचाई पे जा सके और वो उस गति तक पहुंच भी जाता है कि एक अनदेखा हाथ उसे नीचे खींच लेता है। Once again I am saying, curses can follow a person. मैं फिर एक बार कहता हूँ, श्राप एक व्यक्ति का पीछा करता है And it is a spiritual open door और वो एक आत्मिक खुला दरवाजा है for the negative possibilities. एक नकारात्मक चीजों को होने का। What are the reasons for curses? श्राप का क्या कारण हो सकता है? I'm going to say a few points quickly. मैं कुछ पॉइंट्स का If you can write it down. अगर आपके पास किताब है इन सारे शब्दों को आप लिख के ले लीजिए। Disobedience to God's words.
परमेश्वर के शब्दों को न मानना, आज्ञा को न मानना। Deuteronomy chapter 28 verses 15 to 68. व्यवस्था विवरण उसका 28, Jeremiah chapter 17 and verse 5. यिर्मयाह उसका 17 का 5वां वचन। Can you get a Bible? Jeremiah chapter 10. Can you, or you can give a microphone to someone? Someone can read few scriptures on. Thank you. Who can help me? In your language. Pastor Vijay can help. Can you give me a microphone? Jeremiah chapter 17 verse 5. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. यिर्मयाह उसका 17 का 5 हम पढ़ेंगे। यहोवा यों कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Can we read it together? क्या हम एक साथ इसे पढ़ेंगे? When you come for the church meeting, please bring your Bible. जब आप कलीसिया में आते हो, सभा में आते हो, प्लीज अपने अपने पवित्र शास्त्र को लेके आए। All the things are written in the Word of God. हर एक चीज परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। Doesn't matter if you have a mobile phone or iPad, you can take your Bible. अगर आपके पास आपका फोन भी आईपैड है, आप भी उसे निकाल, उसमें अपने बाइबल को ओपन करें। Jeremiah chapter 17 verse 5. यिर्मयाह 17 का 5 We are going to read together. हम एक साथ उसे पढ़ेंगे। Ready? 1, 2, 3, go. यहोवा यों कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Hallelujah. हालेलुया। See, if your heart moved away from the Lord, that means you are cursed. अगर आपका हृदय परमेश्वर से भटक जाता है, इसका अर्थ ये है कि आप श्रापित हो चुके हैं। If you put your trust upon a man, that means you are cursed. अगर आप अपना भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर रखते हो, इसका अर्थ ये है कि आप श्रापित हो चुके हैं। So disobedience to God's words. परमेश्वर के शब्दों को न मानना, उसकी आज्ञा को न The मानना। next thing is idolatry and false worship. और दूसरी बात है मूर्ति पूजा करना और झूठी आराधना करना। Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Can you read it quickly? Exodus chapter 20 verse 3 to 5. निर्गमन उसका 20 का 3 से लेकर 5 तक, निर्गमन 20 अध्याय उसका 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और उनकी उपासना न करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनको बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। We are thinking about the reasons for curses. हम लोग ढूंढ रहे थे कारण श्राप के। Another one, serving other gods or practicing occult. दूसरी बात यह है कि दूसरे पराये देवता की पूजा करना, Witchcraft, जादू टोना करना, black magic, जादू टोना and other mediums and spirits. और बहुत सारे ऐसे कार्य जो बुरी आत्माओं में होते हैं। The next point, dishonoring the parents. और दूसरा ये है कि अपने माता पिता का अनादर करना। Deuteronomy chapter 27 verse 16. व्यवस्था विवरण उसका 27 का 16। If you dishonor your parents, that means you are cursed. अगर आप अपने माता पिता का अनादर करते हो, इसका अर्थ ये है कि आप श्रापित हो। Injustice and oppressing the poor. एक गरीब को सताना और अन्याय करना। Deuteronomy chapter 27 verse 19. व्यवस्था विवरण उसका 27 का 19। Exploiting the poor, widows, orphans and innocent people. शापित हो वो जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े। The next reason, दूसरा कारण, jealousy against someone's growth. किसी और की बढ़ोतरी पर जलन रखना। It could be about their finances, about their promotions, marriage, family, children, wealth and positions. वो जलन उसके परिवार के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, उसके काम के प्रति, उसके बढ़ोतरी के प्रति, उसके व्यवसाय के प्रति। The next point, दूसरा पॉइंट, this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। By hurting
or speaking against a man of God. अपने परमेश्वर के जन के विरोध में कुछ बोलना, See, this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you hurt a man of God अगर आप परमेश्वर के जन को दुख पहुंचाते हो or speak against a man of God, या परमेश्वर के जन के विरोध में कुछ बोलते हो, automatically the curse will come. वो श्राप आपके जीवन पर वैसे ही आ जाता है। Moses married an Ethiopian woman. मूसा ने एक हित्ती महिला से शादी की, Ethiopian woman, black woman. एक काली स्त्री से उसने शादी की। She was from a different country. वो एक दूसरे राज्य की थी, एक दूसरे देश की थी। But his sister Miriam, she was not happy with that marriage. लेकिन उसकी बहन मरियम उस शादी से वो खुश नहीं थी। She spoke against Moses. वो मूसा के विरोध में बोलती है, Moses, why only God speak to you? Why God won't speak to me? I am also in this ministry. I am also in this office. Why only God will speak to you? Why you chose that black woman? उसकी बहन ने मूसा से कहा कि क्यों मूसा परमेश्वर सिर्फ तुझी से बातें करता है, परमेश्वर मुझसे बातें क्यों नहीं करता? मैं भी इसी सभा में रहती हूँ, मैं भी परमेश्वर की आराधना करती हूँ, तो क्यों परमेश्वर मुझसे नहीं सिर्फ तुझसे बातें करता है? और तूने इस स्त्री से ब्याह क्यों किया? Bible says that God asked Miriam and Aaron to come in front of the tent in their house. परमेश्वर ने मरियम और हारून से कहा कि उस छत के नीचे आ जाओ जो उसके घर में थी। Then God asked him, "Who are you to judge my servant Moses?" उस तंबू के नीचे परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो मेरे दास मूसा का न्याय करने वाले? Bible says that परमेश्वर का वचन कहता है, immediately she stepped with leprosy. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी समय कोढ़ से वो भर गई। Hallelujah. हालेलुया। Then Moses prayed for her. और फिर मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की After 7 days, she got healed. और 7 दिनों के बाद वो चंगी हो गई। See, we are not allowed to speak against a man of God or a servant of God. हम लोग किसी भी परमेश्वर के जन के विरोध में बोलने के लिए हमें अनुमति दी नहीं गई है। See, sometimes people don't like how the pastors behave, how the pastors speak, what they do. They will say something. They will speak against the man of God and leave the church. कभी कभार पासवान कुछ बोलते हैं तो किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, उनका प्रचार अच्छा नहीं लगता और वो फिर कुड़कुड़ाकर कलीसिया छोड़ देते हैं। You know what is happening? They are carrying with the curse, not with the blessings. आप जानते हो क्या हो रहा है? वो आशीष को तो नहीं ले रहे परंतु श्राप को See, ले wherever चल you रहे। run and go after the meetings, any man of God lay the hands upon you, nothing will happen because already the curse happened there. आप किसी भी सभा में चले जाओ, किसी भी परमेश्वर के जन से अपने सर पर हाथ रखवा लो, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि श्राप आपके पीछे है। Not only hurting man of God, do not hurt your wife or husband. सिर्फ परमेश्वर के जन को दुख पहुंचाना नहीं, अपने पति या पत्नी को दुख न दे। Hallelujah. हालेलुया। See, I'm a pastor, so I know what I'm talking. मैं एक पासवान हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। See, sometimes I used to see meet different people. कई बार मैं बहुत ही अलग-अलग लोगों से मिलता हूँ। See, why the problems are happening in their family, in their children? The reason is start from the family, from the marriage. क्यों उनके जीवन में इतना समस्या है, क्यों उनके परिवार में इतनी समस्या है, उसका कारण उनकी वैवाहिक जीवन से चालू होता है। The reason, husband and wife, they will hurt each other. इसका कारण ये है कि पति और पत्नी एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। Wherever the strife is, their enemy will come. जहाँ कहीं थोड़ा भी छुड़ाव है, वहाँ शत्रु जरूर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। If the enemy is playing in your house, kick out the enemy tonight. अगर शत्रु आज आपके घर में खेल रहा है, आज ही उसे लात मारकर भगा दे। Hallelujah. हालेलुया। You have to take the authority. आपको वो अधिकार लेना होगा। If the spirit of division is operational in your life, in your marriage, in your family, you have to tell the demon, you have to leave from this house. अगर वो बंटवारे वाली आत्मा आपके परिवार में है, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके परिवार में है, तो आपको उसे कहना है कि इसी समय मेरे परिवार को छोड़कर निकल जाओ। Hallelujah. हालेलुया।
Few years ago, I heard a story. कुछ सालों पहले मैंने एक कहानी सुनी। One lady, she received a job in a far city. अब एक स्त्री को एक काम मिला कुछ एक देश में। She was a widow, वो एक विधवा थी, so she has to go to get her government job, to start her government job. और उसे अपना एक गवर्नमेंट काम से चालू करना था। She had some ornaments with her, उसके पास कुछ चीजें थी, some gold ornaments. कुछ सोना उसके पास She था। doesn't want to take that ornaments along with her to the train. It is very risk. So what she done? She went to the neighbor police officer and gave that ornaments to the hand of the police officer. और वो स्त्री उस सोने को अपने साथ लेके जाना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ही रिस्क हो सकता था ट्रेन में उसे ले जाना। तो फिर उसके पड़ोसी में एक पुलिस ऑफिसर थी, उसने उस सोने को उसके पास दिया। He was a police inspector. वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था। She went and told police sir, I got a job in Delhi. What I'm going to do? I want to give this ornaments to you. Please keep it. When I come back after my job, I will come and collect it from you. मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना है तो मैं सोना लेके नहीं जा सकती, तो आप ये सोना अपने पास रखिए, जब मैं दिल्ली से लौटूंगी तब आपसे वापस ले लूंगी। 2 years later, this lady, she came back. 2 साल बाद वो स्त्री वापस आई। Then she went to this police officer's house. और फिर वो उस पुलिस ऑफिसर के घर में गई। Pushed the bell. उसने बेल बजाई। Police officer came out. वो पुलिस ऑफिसर बाहर आया। Then he asked, "Who are you?" और फिर उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? Then she said, "You don't know, sir. I am your neighbor. I was your neighbor." तो उसने कहा कि सर आप भूल गए क्या, मैं आपकी पड़ोसी थी। Sir, you remember 2 years ago I came and gave the ornaments to keep with you. Please give me the ornaments. I came after the holidays. क्या आपको याद है कि 2 साल पहले मैंने आपको कुछ सोना रखने के लिए दिया था? अब मैं वापस आ चुकी, आप मेरा सोना मुझे वापस दे दीजिए। The police officer said, "Lady, who are you?" उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हे स्त्री, तू कौन है? What ornaments you are talking about? तू किस चीजों के बारे में बातें कर रही है? Get out from my house, otherwise I'll call the police office. Police, all the officers will come and take you. I'll arrest you. अभी इसी समय मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को, मेरे बाकी के ऑफिसर्स को यहाँ पर बुला लूंगा। This lady, she went outside of the gate with tears. वो स्त्री फाटक के बाहर रोते हुए आई। She closed the gate. उसने फाटक बंद किया। Then she looked at the house. और फिर उसने उस घर की ओर देखकर कहा। And said like this. और उसने ये कहा, My God will judge you. My God will judge you. मेरा सोना तेरा न्याय करेगा। Once again, my God will judge you. मेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। You know what happened? Next week, after few weeks, his son got married. और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? कुछ हफ्तों बाद उसका बेटा, उसकी शादी हुई उसके बेटे की। There was a big rich marriage. और वो बहुत ही एक बड़ी अमीर शादी थी। The first night itself, his son's wife walked away from the house. और पहले ही रात को उसके बेटे की पत्नी घर को छोड़कर चली गई। 1 month after, 1 महीने बाद someone put a false case against his police officer. किसी ने एक झूठा केस उस पुलिस ऑफिसर के विरोध में कर दिया। Another group of police officers came and arrested this police inspector. और बाकी के जो दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, उन्होंने आकर ये पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार किया And put him in the jail. और उसे जेल खाने में डाल दिया। How did it happen? ये कैसे हुआ? Unrighteousness. Unrighteousness. Pastor, please. Unrighteousness. धार्मिकता न होना। See, certain things I cannot say in my language. I'm struggling with it. Okay, I'll make it very simple. Bible says that I will bless your works. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को आशीष दूंगा। Whatever you touch will be blessed. तो जिस किसी चीज को छुएगा वो आशीषित होगी। Have you ever used these blessed hands to do any kind of harmful things to others?
क्या आपने इन आशीष ये हाथ जो आपका आशीषित हाथ है किसी और को हानि पहुंचाने के लिए उपयोग किया है? Have you ever used your hands to write bad things about your friends or brother? क्या आपने इन हाथों का उपयोग कभी किसी के विरोध में बुरी बातें लिखने के लिए किया है? Have you ever used your hands raised against your pastor, against your authorities? क्या आपने कभी इस हाथ का उपयोग अपने पासबान के विरोध में, उसके अधिकार के विरोध में किया है? See, बोलिए। that one can bring curses in your life. वो एक कारण हो सकता है जो आपके जीवन में श्राप को लाता है। One day, one of the man, he was organizing a meeting in a foreign country. Then he asked, Pastor, we need some money to organize the meeting. एक व्यक्ति एक फॉरेन कंट्री में, एक दूसरे राज्य में एक सभा का प्रयोजन कर रहा था और उसने मुझसे कहा कि पासवान हमें कुछ पैसे चाहिए ताकि हम उसका प्रयोजन कर सके। We gave money. हमने उसे पैसे दिए। Then when I went there, the meeting was not good at all. और जब मैं उस सभा में गया तो वो सभा कुछ अच्छी नहीं थी। He didn't put the meeting properly. Then later on I found out that this man used the money to drink alcohol. तब मुझे पता चला कि वो सभा इसलिए अच्छी नहीं हुई क्योंकि जो पैसे मैंने इसे दिए थे उन पैसों का उपयोग इसने शराब पीने के लिए किया। Have you ever cheated a man of God? क्या आपने कभी किसी परमेश्वर के जन को धोखा दिया है? Are you faithful to your husband? क्या आप अपने पति के प्रति विश्वास योग्य हो? Are you faithful to your wife? क्या आप अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हो? Are you faithful to your parents? क्या आप अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य हो? Think about it. इस बारे में सोचें। Bible says that God's eyes are naked. He can see everything, whatever you do in the secret or in the public. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें उन सारी चीजों को देखती है जो आप गुप्त में भी करते हो और खुले में भी। Expect a change. एक बदलाव की अपेक्षा करें। See, Bible says that Jesus shed his blood from his hands. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने हाथों से लहू को बहाया। You know what's the meaning? क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? To make your hands righteous. ताकि आपके हाथ को वो धार्मिक धर्मी बना सके। Your hands are righteous hands. आपके हाथ एक धर्मी हाथ है। We are not allowed to use these righteous hands to do any kind of harmfulness to others. हम लोगों को इस आशीषित हाथों से कोई भी चीज जो दूसरों को हानि पहुंचाती है इसकी अनुमति नहीं दी गई। I know tonight I never planned this thing. I can see the hands. मैंने ये सारी चीजों की योजना नहीं की थी लेकिन मैं हाथों को देख रहा हूँ। Have you ever used these hands to abuse someone? क्या आपने कभी इन हाथों का उपयोग किया किसी को गाली देने के लिए? Have you ever used your hands to abuse your wife? क्या आपने कभी इन हाथों का उपयोग किया अपनी पत्नी को गाली देने के लिए? Ask forgiveness to Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह से क्षमा को मांगे। Shall we close our eyes one minute? क्या हम अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे? Talk to Jesus. यीशु मसीह से बातें करें। If you made any kind of mistakes in the past with your knowledge, ask forgiveness. Lord Jesus, forgive me, Lord. आपने अपने अतीत में जो भी पाप किए होंगे, जो भी गलतियां की होंगी, आज प्रभु से क्षमा मांगे। Another reason for curse. दूसरा कारण है श्राप का। Stealing others' property. किसी दूसरे की जमीन को, किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को छीनना। And possessions and their opportunities. उसके मौके को चुराना, उसके कार्य को चुराना। Stealing God's money. परमेश्वर के पैसों को चुराना। So this is a very important point. Stealing God's money. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर के It's पैसों को written चुराना। Malachi chapter 3 verses 8 to 10. ये लिखा है मलाकी उसका 3 और 8। You can write it down and go home and read it. आप अभी लिख के ले सकते हो और घर जाकर आप इसे पढ़ना। If anyone can rob God,
अगर जो कोई भी परमेश्वर की चीजों को चोरी करता है, You can read it. आप उसे पढ़ेंगे। Not helping the poor. Not helping the poor. Another reason of curse is not helping the poor. श्राप का दूसरा कारण हो सकता है किसी गरीब की सहायता न करना। Proverbs chapter 28 verse 27. नीति वचन उसका 27 का 28। Bible says that a curse will not work without a cause. Proverbs chapter 26 verse 2. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि श्राप तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उसके लिए कुछ चुकाया ना गया। See, but if there is a cause, the curse can happen. जब कुछ दिया गया हो, कुछ चुकाया गया हो, तो श्राप कार्य करेगा। The first thing of disobedience to God's word. पहली बात है कि परमेश्वर की बातों को न मानना, उसकी आज्ञा को न मानना। Disobedience to God's voice. परमेश्वर की आवाज को न सुनना, उसकी आवाज को न मानना। See, these are the few points I was reading. I was sharing with you. ये कुछ सारे पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी से बांट रहा था। How to come out from the curses? That's what part we are going to think about. अभी हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, वो है कि इन सारे श्रापों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। Confession and forgiveness. मानना और क्षमा को मांगना। Confess your mistake to the Lord. अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान ले। And if you made a mistake, ask sorry to God. और अगर आपने गलती की है तो परमेश्वर से माफी को मांगे। Expect a change in your life. अपने जीवन में एक बदलाव की अपेक्षा करें। Then take a decision to live a clean life. और ये निर्णय ले कि अपने जीवन में एक शुद्ध और निर्मल जीवन जीने का। Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, are you blessed? अपने पड़ोसी को देख कर कहें, क्या आप आशीषित हो? I know you never heard this kind of things in your life. Maybe some of you heard, but many of you are hearing the first time. मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इन सारी बातों को सबसे पहली बार सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले भी सुना और कुछ लोग आज ही इसे सुन रहे हैं। The reason why God wants to bless you. ये क्यों है आप लोग ये सारी चीजें सुन रहे हो? ताकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। See, we have heard what are the reasons for the curses. हम लोगों ने ये सुना कि श्राप आने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। If we have a generational sickness, that means there is a curse operation behind that sickness. अगर कोई बीमारी आपके पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके साथ आ रही है, इसका अर्थ ये है कि उस बीमारी में श्राप है। If someone is going continuous financial struggle, months after years after lack, is not having enough food, not having enough finances, that means there is a crisis operation. अगर कोई बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, उसके पास उतने पैसे नहीं बच पा रहे और बहुत ज्यादा वो संघर्ष कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपकी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर श्राप है। Some people used to go to continuous grief. कुछ लोग बहुत लालच में जा रहे हैं, worries, चिंता में, depression, तनाव में, anxiety mind, और ऐसा मन जो एक घबराया हुआ मन, suicidal thoughts, आत्महत्या करने के विचार, failures, हार जाना, continuous failures. एक लगातार हारना, These are the few symptoms of curses. ये श्राप होने के बहुत चिन्ह हैं। But I have a good news for you. लेकिन मैं आप सभी के लिए खुशखबरी को लाया। Book of Galatians chapter 3:13 and 14 says that Jesus became a curse at the cross for you. मैं आज खुशखबरी को आपके लिए लाया हूँ कि गलतियों 3:13 और 14 कहता है, यीशु मसीह क्रूस पर तुम्हारे लिए श्रापित बना। Hallelujah. हालेलुया। Look at your neighbor and say, Jesus has taken all the curses upon the cross. आपके पड़ोसी को देखकर कहें कि यीशु मसीह ने सारे श्रापों को उस क्रूस पर लिया। I am a blessed person. मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। No one can curse me. कोई मुझे श्राप नहीं दे सकता। I tell you, if you say this, you will have it.
मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप इसे कहोगे तो फिर वैसा होगा। Whatever you speak, you will have it. आप जो कुछ भी बोलोगे आपको मिलेगा वो। This all prophetic declaration. ये सारी एक भविष्यवाणी करने की Say, घोषणा I do है। not lay the hands upon you, but you can receive wherever you are. मैं इससे जरूरी नहीं कि जब मैं आप पर हाथ रखूंगा, लेकिन जहाँ कहीं भी आप इसे ग्रहण कर सकते हो। Look at your neighbor and say, अपने पड़ोसी को देखकर कहे, I will prosper in everything. मैं हर एक चीज में बढ़ोतरी पाऊंगा। Turn to the other neighbor and say, अपने दूसरे पड़ोसी को देखकर कहे, I am not a failure. मैं एक हारा हुआ नहीं। So you all are happy. आप सब आनंदित हैं। You know the reason why? आप जानते हैं इसका कारण क्या है? Bible says that the truth shall set you free. आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Whatever you declare, that is from the word of the Lord. आप जो कुछ भी चीजें घोषणा करते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। Lift both of your hands and say, I am a blessed person. अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलें कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। Once again, फिर एक बार, I am really blessed. मैं सचमुच एक आशीषित व्यक्ति हूँ। My life is blessed. मेरा जीवन आशीषित है। My family is blessed. मेरा परिवार आशीषित है। My children are blessed. मेरे बच्चे आशीषित है। My family is blessed. मेरा परिवार आशीषित है। Then keep your hands in your chest and say, my body is blessed. अपने हाथ को अपनी छाती पर रख कर कहें कि मेरा शरीर No आशीषित sickness है। can touch my body. कोई बीमारी मेरे शरीर को छू नहीं सकती। No generational sickness can touch my body. कोई पीढ़ी से पीढ़ी आई हुई बीमारी मेरे शरीर को छू नहीं सकती। Open your mouth and say, sickness, अपने मुंह को खोल कर कहें बीमारी, disease, वो सारी बीमारी, you are illegal. तुम You are illegal in my body. मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो। You cannot touch my body. तुम मेरे शरीर को नहीं छू सकते। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। No weapon fashioned against me will prosper. जो भी शत्रुओं के तीर मेरे विरोध में वो कार्य नहीं करेंगे। All the eyes being closed and lift your hands to heaven. सारे आंखें बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। Any limitation is oppression in your life. See that thing. जो भी चीज आपके एक जीवन में एक सीमा को लाता है, वो चीज को देखिए जो एक सीमित है। All the eyes being closed. Don't look at me. सारे आंख सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोई मेरी ओर ना Look देखे, at Jesus. यीशु मसीह की ओर देखें। Then tell to Jesus, Jesus, और यीशु से कहे, यीशु here I am. मैं यहाँ हूँ, I need a change. मुझे बदलाव चाहिए।